सो वेलकम बैक दोस्तों। आज का वीडियो इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम आवर प्रीवियस वीडियोस, बट ट्रस्ट मी दिस वीडियो माइट सेव योर फेस फ्रॉम गेटिंग ripped apart. Yes, I'm talking about a specific type of species which is known as sloth bears. So to study and understand more about the species, we decided to head towards a bear rescue center. तो यार रेस्क्यू सेंटर की तरफ जाते समय हमको ये पता चला कि ये स्लॉथ बेयर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये मेनली एरिया स्पेसिफिक नहीं है, ये मोस्टली फॉरेस्ट रीजन्स में पाए जाते हैं। अब देखा जाए तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, साउथ में तो ऑलमोस्ट साउथ के सारे जगह पे ही मिले जाते हैं ये। So guys, we are here in the Bear Rescue Center. Let me tell you about this place. This organization was established 27 years ago and they are actively working on rescuing bears, leopards, elephants and snakes. I'll also tell you the story behind this organization, how this was formed and why this was formed. There is also a very painful reality from which these animals have been rescued from. But before all that, मैं स्लॉथ बेयर्स के बारे में थोड़ी जनरल चीज़ें बताता हूँ जो कि यहाँ आने के बाद मुझे पता चली है। विच आर स्लॉथ बेयर, दे आर बेसिकली अ सॉलिटरी एनिमल्स और इनकी लाइफ स्पैन रहती है अराउंड 15 years to 30 years डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट। अगर ये फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो इनकी लाइफ स्पैन रहती है अराउंड 15 साल से 17 साल के आसपास, एंड अगर कैप्टिविटी में है या रेस्क्यू सेंटर में है देन दे गो अप टू 30 years और 35 years। इनका यूजुअली वेट रहता है अराउंड 100 to 140 kgs इन फॉरेस्ट। बट यहाँ के जो स्पीशीज़, यहाँ के जो स्लॉथ बेयर्स हैं, ये जिस टाइम पे रेस्क्यू हुए थे उस टाइम पे इनका वेट था अराउंड 40 to 50 kgs। सो यहाँ पे आफ्टर टॉकिंग टू द अथॉरिटीज़ आई केम टू नो दैट मोस्ट ऑफ द बेयर्स which are in this rescue center are from the Kalandar community. These people were using sloth bear for entertainment purpose, जो कि specifically देखा जाए तो they used for bear dancing and they have been using from the Mughal era. So ये काफ़ी टाइम से चलता आता हुआ एक ये था और ऐसा चलने के बाद काफ़ी टाइम के बाद finally this organization stepped up and rescued all the bears with the help of Government of India. Also let me clear off one more thing, which is bears dance नहीं करते, and the culture of bear dancing that used to happen years ago was actually a form of torture only. Literally what these people did was they inserted a rod through the muzzle and tied a rope through that hole, which is actually a very painful thing जो कि इनने एक्सपीरियंस किया है। बट इनका टॉर्चर वहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुआ। जो बेयर डांसिंग करवाते थे उस टाइम पे what these people did was they used to pull that rope जो इनके मसल से बांधा रहता था, और the bear stands up और फिर उस पेन की वजह से, उतने एक्सक्रूशिएटिंग पेन की वजह से वो खड़े होकर वो रोप निकालने की कोशिश करता है, एंड उसी को लोग बेयर डांसिंग बोलते थे। एंड गाइज लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दिस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड एंड इन 1996 almost 1200 bears were rescued across India, जिसमें से 50% of them were rescued by this particular organization. I'm really proud that they are doing such a thing to conserve our wildlife. So guys, most of you might be thinking कि इनको rescue तो कर लिया but इनको wild में क्यों नहीं छोड़ रहे? The simple answer to this is these bears cannot survive in the wild because the main reason being these bears are not physically capable of hunting and surviving in the wild. So guys, all the animals which are rescued over here are given with proper diet, making sure all the protein and vitamin requirements are met. And the super worms, they are actually very much rich in proteins and the bears love it. And these are the buck shoulder flies, ये भी इनको बहुत पसंद है। So guys, as you can see, the bears are waiting for us because इनका snack time हो गया है। तो स्नैक्स के लिए बेयर्स को यूजुअली वाटरमेलन, पपाया वगैरह फ्रूट्स दिए जाते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनको कोकोनट्स भी दिए जाते हैं बिकॉज इनको वो तोड़ के खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो जो अभी सामने जो बेयर आई हुई है इसका नाम है मिली एंड शी इज़ 2 years old, और यू कैन सी ये जब चल रही होगी शी इज़ लिम्पिंग बिकॉज जब इसको रेस्क्यू किया गया था ये बहुत सीवियरली इंजर्ड थी, एक बेयर ट्रैप में फंस गई थी। तो ये तो बस मिली की स्टोरी थी। ऐसे यहाँ पे जो भी बेयर्स है सब रेस्क्यूड बेयर्स है, सो सबकी अलग अलग स्टोरीज हैं। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ एंड ऑल, आई वुड से यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस बिकॉज ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, आई एम रियली प्राउड ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। तो दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस,
अगर आपका कभी क्लोज एनकाउंटर होता है इन स्पीशीज के साथ, देन आई एम टेलिंग यू, ये जितने क्यूट दिखते हैं उतने हैं नहीं जब ये वाइल्ड में रहते हैं। सो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इफ यू स्पॉट अ स्लॉथ बेयर? सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है दैट इज स्लो डाउन योर मूवमेंट्स एंड स्टार्ट बैकिंग डाउन। और अगर वो नहीं वर्क करना, इफ द बेयर इज चार्जिंग एट यू, देन मेक श्योर यू हैव अ पेपर स्प्रे इन योर बैग, क्योंकि ये चीज़ आर रियली इफेक्टिव। अगर फिर भी तुम्हारे ऊपर चार्ज कर रहा है एंड इफ यू आर बीइंग अटैक्ड, देन मेक श्योर यू ले डाउन in a fetal position covering your head and just don't fight back. You are not Hercules. So guys, let me show you the pictures of some people who were attacked by sloth bear. Also, let me remind you that these are wild animals and they are called wild animals for a reason. So guys, stay safe and stay healthy. So guys, that's all for today, and before ending this video, I would like to say that your support has really been valuable for me, and further I would like to thank my forest ranger buddy to make all the arrangements for such an amazing experience. Thanks man. अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में. Till then, goodbye.